अच्छा सब बेहतरीन, आपकी आवाज़ आ रही है। ٹھیک ہے کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے جناب؟ شاہ صاحب آج نے تھوڑا سا میں نے رکھا تھا ٹاپک، پھر دوستوں نے بات بھی کی ہے کہ جو قادیانیت کے مربیان اور براڈ پہ بیٹھے ہوئے جو دجل پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ اپنی قادیانی جماعت کے ماننے والوں کو کیسے الفاظوں سے دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ غیر احمدی، غیر جماعت، کلمہ گو مسلمان، یہ سب فراڈ ہے۔ جو اصل جو قادیانی کی تعلیم ہے نا مرزا قادیانی کی، وہ مرزا قادیانی کے ماننے والے عام بندے سے چھپائی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی میری اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، بات جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں۔ ہاں جی، تو اس میں تھوڑے سے ہمارے بھائی تھے، عابد بھائی، انہوں نے بھی ایڈ کیا، خان صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا گفتگو میں، تو اور مرزا قادیانی کے عقائد اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اس کے مرزا قادیانی کے عقائد کو چھپایا جاتا ہے اس کی جماعت کے ماننے والوں سے۔ وہ اس طرح کے جیسے مرزا قادیانی نے سود کا پیسہ حلال کیا ہے اسلام کی اشاعت کے لیے، توبہ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد قبر سے نکلے ہوئے کفن بیچ کے پیسہ جمع ہوا تھا اس کے ماننے والوں نے، وہ بھی اسلام کو لگا دیا۔ اور اس کے بعد مرزا قادیانی کا عین محمد ہونے کا دعویٰ، توبہ نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں نا آج شروع میں لائے تھے۔ جی محبت کا سپورٹر بھائی جان، آپ شامل گفتگو ہونا چاہیں گے؟ جی سپورٹر بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی علی بھائی، میں ہوں ادھر ہی، لیکن آپ کریں، میں ابھی سو کے اٹھا ہوں ابھی سیشن میں۔ ٹھیک ماشاء اللہ۔ عفی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، سب بھائیوں کا سلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی خیریت، اللہ کا شکر۔ اجزا مہر صاحب آپ کا مائک کافی دیر سے میوٹ ہے، آپ سے بات نہیں ہوئی، آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سن رہے ہیں ویلو سن رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، سادے محترم تشریف لا چکے ہیں، ہم امید ہے کہ ایک دو منٹ میں وہ گفتگو کریں گے، انشاءاللہ ہم سنتے ہیں بیٹھ کے ساتھ میں۔ ایم ایس ایم صاحب، جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے سر آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب میرا ایک تھوڑا جہا ریسرچ ہے کہ ایل جی بی ٹی اور ہم جنس پرست جڑی امریکہ، یورپ، اسرائیل دے تحت ہم جنس پرستی دے تنظیماں چل رہی ہیں، اور ان دے وچ انکشاف یہ ہوا ہے کہ جڑی مرزیت قادیانیت ہے ان دا حصہ ہے، اور ایشیا دے وچ جتنی ہم جنس پرستی ہے وہ اے جڑے لوگ نے مرزئی جڑی جماعت قادیانی ہے یہ پھیلا دی ہے۔ ان دے بارے ہن تسی کی کہندے ہو؟ اور اس تو بعد رشیا نے، روس دے صدر نے اعلان کیتا اج تو 2-3 دن پہلے کہ ہم جنس پرستی نو اس اپنے ملک دے وچ بین کیتا ہے، اور اس تو بعد ایل جی بی ٹی اور ہم جنس پرستی پھیلان والےاں نو دہشت گرد کیا ہے اور قوم دے نسلاں دے دشمن کیا ہے۔ اور یہ سارے ملک پاکستان دے وچ مرزیت جڑی ہے، اج ٹرانسجینڈر بل آ رہے نے یا جنس پرستی ہو رہی ہے، ان دی باقاعدہ سرپرستی کر رہے ہیں، ان دے بارے تسی کی کہندے ہو؟ بس قرب قیامت ہے جناب، اور فتنے کا دور ہے، اور فتنہ بڑھ رہا ہے، اور یہ مزید بڑھنا ہے، کم نہیں ہونا، کیونکہ یار ڈبل آواز آ رہی ہے، یہ کس کا مائک اوپن ہے؟
تو یہ ہے کہ یہ فتنہ مزید بڑھنا ہے، کم نہیں ہونا. لیکن یہ ہے کہ ان فتنوں کے خلاف جتنی ہمت اور توفیق ہے کام کرتے رہنا ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہر ایک اپنا کام بس کرتا رہے، بقایا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. شاہ صاحب ایک معذرت ایک اور چیز ایڈ کر دیا کہ جو آیا سی مرزا انجینئر والا کہ میرے بھائی اورل سیکس جائز ہے، اور یہ عمل بھی جڑا ہے ہم جنس پرستی تہاڈی آواز بڑی کسی دوسرے کمرے چوں آندی ہے پئی. شاہ صاحب میں ڈرائیو کر رہا ہاں تے اس وجہ تو یا نیٹ دی پرابلم ہے یا کی مسئلہ آواز صحیح نہیں جا اے رہی ہون ہن. ٹھیک ہوئی ہے. ہاں جی میں کہہ رہا کہ جڑا تساں ایک پوائنٹ اٹھایا سی مرزا انجینئر دے بارے کہ اورل سیکس میرے بھائیو اورل سیکس جائز ہے، اندر تے تساں باقاعدہ ولاگ بھی کیتے نے، باقاعدہ اندر تے تساں ٹک ٹاک تے بھی کام کیتا ہے. کیا مرزا انجینئر بھی اس ایل جی بی ٹی اور ہم جنس پرستی دا یعنی کہ سپورٹر ہے کہ جس نے اس چیز نو لیگل کیتا ہے کہ تسی اورل سیکس کر سکتے ہو، یا یہ جڑیاں چیزاں نے مکمل طور تے ایل جی بی ٹی اور ہم جنس پرستی وچ پائیاں جاندیاں؟ جی یہ سارے ایک نے نا جناب، سارے ہی ایک نے، یہ سارے ہی ایک نے. بس شہرت دے بھکھے تے دنیا دے کتے اے سب ایک نے. اور یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس کی حضور کی پیش گوئی کا یہ مظہر ہے. یہ سارے مظاہر ہیں، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو کچھ احادیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے ایسے ہونا ہے، ویسے ہی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہو کے ہی رہنا ہے، اور ہو کے ہی رہنا تھا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، کیونکہ حضور جی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار پہلے کر دیا تھا ایسے ہونا ہے. تو بہرحال اسی دور کے بارے میں پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا چاہے تمہیں 7 کوٹھریوں کے اندر بھی چھپنا پڑے تو چھپ کے اپنا ایمان بچا لینا. وہی دور ہے، اسی دور سے گزر رہے ہیں ہم، اور یہ مزید آگے بڑھنا ہے. اپنے اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں، ہر انسان خود ذمہ دار ہے. جو بکری ریوڑ سے بچھڑتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. علماء کی سپورٹ میں رہیں گے، علماء کے قریب رہیں گے تو جناب آپ کا ایمان بچا رہے گا. اگر آپ نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا، ایسے لوگوں کی دوستی میں رہے، ایسے لوگوں کی رفاقت میں رہے کہ جو دین بیزار ہیں، جو لا مذہبیت اور لا دینیت کے قائل ہیں، جو لبرلز ہیں، جو آزاد خیالات رکھتے ہیں، جو گناہ کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی اگر رفاقت میں رہے تو پھر آپ بھی اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے. کیونکہ صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند. نیکوں کی صحبت تمہیں نیک کر دے گی، بدوں کی صحبت تمہیں بد بنا دے گی. دور کیا جانا ہے، ابھی ٹک ٹاک کے اوپر ہی دیکھ لیں. ویسے تو سوشل میڈیا کے دسیوں پلیٹ فارمز ہیں، لیکن اس ایک پلیٹ فارم پر ہی دیکھ لیں. جو لوگ ان کنجریوں کے ساتھ اور کنجروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو دن بھر گندے کام کرتے ہیں، لائیو ڈانس کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، آئی لو یو کا کھیل ہوتا ہے، گفٹنگ ہوتی ہے، جیسے کنجریوں کے اوپر ایسے پیسہ نچھاور کیا جاتا ہے.
जब ऐसों की सोहबत मिलेगी तो तुम्हें वैसे हो जाओगे तुम। जब नेकों की सोहबत मिलेगी तो नेक हो जाओगे। और एक दरमियानी सूरत है, एक तो वो है कि जो खुले खुले गुनाह कर रही हैं, एक वो है जो खुले खुले नेकी कर रही हैं, एक दरमियानी लोग हैं, वो है जाहिलों का तबका, कि जो है जाहिल लेकिन दीनदारी का उनको शौक होता है, तो वो दीनदारी की बराडें चला के बैठ जाते हैं जाहिल। अब इल्म नहीं होगा, दीनदारी की बात वो कैसे करेगा? वो खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी करेगा। फिर होता यहां पर ये है कि अंधों में काना राजा। उन जाहिलों के अंदर कोई एक बंदा कोई थोड़ा सा ज्यादा इल्म वाला आ जाता है ना, तो उसको अपना लीडर बना के उसका फिर दर्स सुनना शुरू कर देते हैं। अब देखो, अब काम तो खराब हो गया ना। असल में हमने कानून को तोड़ा है, ज़ाब्ते और कायदे को तोड़ा है। ज़ाब्ता और कायदा ये था कि लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो ही उस फन को बेहतर जानते हैं। जिसका फन, जिसका वो है ना, जिसका काम उसी को साजे, तो वो असल में छोड़ दिए। तो ये जो दरमियानी रास्ते वाले लोग हैं ना, इनको भी अल्लाह बचाए, महफूज रखे। तो अपनी अपनी गिरेबान में झांकिए, आप कहाँ पे खड़े हैं। अपनी अपनी दोस्ती पर जरा गौर करें, मेरे दोस्त कैसे हैं। अपने दोस्त नफीस, पढ़े लिखे, उलमा, उनको दोस्त बनाएं, उनकी सोहबत इख्तियार करें। और जो हाल की अगर सोहबत में रहेंगे तो खुद भी जाहिल हो जाएंगे भाई, वो रंग चढ़ जाएगा आपके ऊपर। एक बंदा शराब नहीं पीता लेकिन उसके दोस्त शराब पीते हैं, उन शराबियों की सोहबत जो है ना, वो एक दिन उसको शराबी बना देती है। एक बंदा गैर महरम लड़कियों के अंदर बड़ी इंटरेस्ट रखता है और बातों बातों में वो बड़ी गुफ्तगू करता है लड़कियों के बारे और उनके खदोखाल के बारे, उनके गंदी गंदी बातें करता है, तो उसकी सोहबत इख्तियार करेंगे तो फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। या तो ये तरीका है, उसको आप समझाएं ना भाई ना। अगर वो समझ जाए ठीक, ना समझे तो सोहबत छोड़ दे, अनफ्रेंड कर दे। कि अब तू मेरा फ्रेंड नहीं है। ये तरीकेकार है ना। कोई सोहबत अपनी अच्छी करें, रफाकत अपनी अच्छी करें, अपने चुन के फ्रेंड बनाएं, नेकों की सोहबत इख्तियार कीजिए। रूहानियत जो है वो खत्म होती जा रही है, मादियत छाती जा रही है। मादियत का जो तोड़ है वो रूहानियत है। वो क्या कायदा कुलिया भाई, वो साइंस का, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो क्या है, इंग्लिश का एक फार्मूला है। शाह साहब वो है, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, हर एक्शन एक रिएक्शन रखता है। तो भाई मादियत को अगर आपने तोड़ना है तो उसकी जगह पे रूहानियत को खड़ा करना पड़ेगा। रूहानियत, हाँ, आप जरा देखिए ये रूहानियत क्या है। रूहानियत गैब है, मादियत मादा जो नजर आता है, जिसको आप छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। रूहानियत
غیب ہے. جیسے آپ کے جسم کے اندر جناب آپ کا جو جسم ہے یہ مادہ ہے، یہ ظاہر ہے، اور آپ کا ایک باطن ہے جو روح ہے وہ غیب ہے. تو مادیت کا جو رد ہے وہ روح ہے، روحانیت ہے. آپ دیکھیں جب جسم مر جاتا ہے تو روح تو زندہ ہی رہتی ہے نا، روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت آ جاتی ہے. تو روح جو ہے نا وہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. تو روحانیت اس مادیت کا توڑ ہے. قرآن پاک آپ کھولتے ہو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی جا نہیں. ہدن للمتقین، متقین کے لیے یہ باعث ہدایت ہے. یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے اور کسی کو نہیں. صرف متقین کو. یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو یہ بھائی یہ ہدایت کا باعث بنتی ہے، دوسروں کو نہیں بنتی. ان کافروں کو کیسے بنے گی؟ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ جناب فاسق اور فاجر اور گنہگار ان کے لیے کیسے ہدایت کا سرچشمہ ہے؟ نہیں. ہدن للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. اور متقین کون ہے؟ ان کی آگے پھر 5 صفتیں اللہ بیان کرتا ہے. ابھی آپ نے قرآن کھول لی ہے، کتاب کھول لی ہے، پوری کتاب ابھی بعد میں آئے گی. سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، پہلے وہ لوگ ہیں متقین کے جو غیب کے اوپر ایمان لاتے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانے والے، یہ ہے متقین کی پہلا فرد، پہلے لوگ جو پہلی لسٹ جو ہے متقین میں سے وہ یہی ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے. یہ پہلی علامت ہے. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ دوسرے لوگ ہیں، دوسری علامت ہے، دوسری نشانی ہے ان لوگوں کی، متقین کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری علامت ہے. آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، حج روزہ زکاتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور یہ تو بعد میں آتی ہیں میاں. سب سے پہلے تو وہ روحانیت کا درس ہے. غیب کے اوپر ایمان لانا ہے، روحانیت کے اوپر ایمان لانا ہے. وہ روحانیت وہ غیب ہے، غیب روحانیت ہے. بقایا ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ بھی علامتیں ہیں ان کی، متقین کی. اور اس پر بھی مان لاتے ہیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر نازل ہوا. الیکا، انزل الیکا، تم پر. یہ جو قرآنسٹ ہیں یہودی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس سے مراد وہ کوئی بنی اسرائیل کا محمد تھا، اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. نہیں، ایسا ہے ہی نہیں.
बिमा उनजिला इलैका, तेरे ऊपर जो नाजल हुआ उस पर ईमान रखते हैं, और जो तुमसे पहले नाजल हुआ उस पर ईमान रखते हैं। और आखिर में फरमाया व बिल आखिरती हुम यूकिनून, और आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। अब आखिरत की जब बात करें, जो आखिरत को नहीं मानता वो भी इसका मतलब है उसके लिए ये कुरान बाइसे हदायत नहीं है, कुरान उसको कुछ भी नहीं बताएगा। सर सैयद अहमद खान पहला शख्स था जिसने इस रूहानियत का, इस गैब का इनकार किया और एक नई तशरीहात पेश की थी। सर सैयद अहमद खान वो जब पहुंचता है ना इसी के ऊपर, मालिकी यौमिद्दीन की तशरीह करते हुए, तफसीर करते हुए, वो कहता है मालिकी यौमिद्दीन यानी आखिरत का जो दिन है, इससे मुराद पता है क्या है? ये मैं सर सैयद अहमद खान की तफसीर से पढ़ने लगा हूं। कहता है यानी उस दिन का जिस दिन के उस नूरे फितरत के काम में लाने या ना लाने का जो खुदा ने हर एक इंसान में मुवाफिक उसकी हालत के रखा है, नतीजा जाहिर होगा। ये लें जी, ये एक नई तशरीह आ गई है। कहने लगा सर सैयद अहमद खान, कहता है कि इंसान जब जिंदगी गुजार रहा होता है तो गुनाह कर रहा होता है, लेकिन उसके बदलाव का एक दिन आता है कि वो बदल जाता है, वो नेकी करनी शुरू कर देता है। कहता है वो वाला जो दिन है ना, नूरे फितरत का वो दिन है, उस नूरे फितरत के दिन को मालिकी यौमिद्दीन कहा जाता है। उस दिन का मालिक अल्लाह है। ये आखिरत का जो दिन है, क्यामत का जो दिन है, यही है जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक बदलाव का एक यू टर्न आता है कि जब तुम बदल जाते हो। अब मुझे बताइए, जो आखिरत के दिन पर ईमान ही नहीं रखता वो मुत्तकीन कैसे हो सकता है, और ये किताब उसको समझ कैसे आएगी? बताइए। 5 लामते हैं ये। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये है वो, अल्लाह ने वादे कर दिए, ये है अपने रब की तरफ से हदायत याफ्ता, इनको हदायत मिली है और यही फलाह पाने वाले हैं। हाँ, अल्लाह कह रहे फलाह का, कामयाबी का, हदायत का अल्लाह ने जो रास्ता बताया उसको हमने छोड़ दिए, और इस रास्ते ये जो बताया था ना, उसका पहला जो पहली सीढ़ी थी वो ये थी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं, रूहानियत के ऊपर ईमान लाते हैं। तो वो रूहानियत और गैब को तो छोड़ ही दिया, तो बकाया तो रहा ही कुछ नहीं। अभी तो वो देखिए ना, मिर्जा जूनियर जेल में है, मिर्जा सीनियर है, वो एलानिया तौर पे कहते नहीं हम करामतों को नहीं मानते, बाबों की करामतों को। करामत क्या है? ये यही गैब है। मोजजा क्या है? ये गैब है। मिर्जा सीनियर ने, सर सैयद अहमद खान ने मोजजात अंबिया का इनकार कर दिया। वो कहते नहीं, कोई नहीं, वो मोजजे कुछ भी नहीं। ये गैब की चीजें हैं, इन पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फितने का दौर है साहिबो, सोहबत अच्छी करिए, अल्लाह के बंदो सोहबत अच्छी करिए, नेक बंदों के साथ रहिए। आप जब मुनकरीने हदीस के साथ रहेंगे, आप जब मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर्स के साथ रहेंगे, उनकी रफाकत में रहेंगे, रंग चढ़ जाएगा अल्लाह के बंदो। ओए अल्लाह के बंदो, रंग चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। बच जाओ, बच जाओ, दोस्ती छोड़ दो।
मैं यकीन जाने मेरी एक फितरत है, मेरी एक आदत है, हालांकि मैं आलम दीन हूं, हालांकि मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं इसके ऊपर बड़ा अमल करता हूं। जिसके अंदर मैं थोड़ी सी बू देख लेता हूं ना कोई इधर उधर की, तो उसकी फिर रफाकत मैं छोड़ देता हूं। मैं समझता हूं कि ये अब बदलाव का रास्ता इसके अंदर वो बंद हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है, इसने ये बंदा बदलने वाला नहीं है। फिर उससे मैं वो थोड़ा सा पीछे कदम हटाता हूं। भाई मैं ऐसे खाम खा मतलब मैं गिर जाऊंगा इस गुनाह के अंदर। भाई मुझे अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है कि नहीं करनी? तो सोहबत अच्छी करिए, आशिकों की सोहबत में रहिए, नमाजियों की सोहबत में रहिए, नमाजी बन जाओगे। रोजेदारों की सोहबत इख्तियार करोगे, रोजेदार बन जाओगे। तो जो जैसे की सोहबत इख्तियार करेगा वैसा बन जाएगा, बस कोई मुश्किल नहीं। लई सलिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वो ही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है और हर शख्स को वो ही मिलता है जिसकी वो नियत करता है। और तुम्हें क्या कहा था, हुक्म तो तुम्हें दिया था, तुम अल्लाह रसूल के अहकाम की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। हुक्म ये था इत्ताकू मकामत तोहमी, तोहमत की जगह से भी बचो, और जहां पे तोहमत लगने का डर हो बचो, डरो, बचो, डरो, दौड़ो, भागो उस जगह से जहां से तोहमत लगने का डर हो। हम वो ख्याल ही नहीं करते। हमें बताया भी जाता है कि यार जिनकी तू सोहबत इख्तियार कर रहा है मियाँ ये कुछ और है मामला, लेकिन नहीं, वो कहते नहीं कोई नहीं, खैर मेरे, ओ खैर मेरे यार है मेरे। अबे यार है पागल, तू भी वैसा हो जाएगा। वो कहता नहीं यार है मेरा, तू जाना है तो जा साडे लू, नहीं वो मेरा यार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है भाई, सही है। तो ऐसी ना समझियां करोगे तो फिर बहक जाओगे मियाँ, बहक जाओगे। मैंने यकीन मानिए इस सोशल मीडिया पे बड़ा वक्त गुजारा और बड़ा कुछ देखा है मैंने बड़े बड़े बदलते देखे हैं, नेकों को बद होता देखा है और बदों को नेक होता भी देखा है। बड़े बड़े बदलाव देखे। चलो इंशाल्लाह ज़ियार सुल मुझे माफ कर देगा। ज़ियार सुल मैंने जब ये फेसबुक का ग्रुप बनाया था, कादियानी मुनाजरा ग्रुप, तो इब्तिदा में ये कोई पोस्टें कोई और किया करता था, और किस्म की यानी पोस्टें। लेकिन इस बंदे के अंदर मैंने देखा कि ये बंदा, मैं तो वाकफ तो नहीं था कौन है बंदा, कौन है। तो मैंने देखा कि ये बंदा जो है ना काम का बंदा है। अब इस बंदे के ऊपर हाथ रखा हमने, और सोहबत दी है, तो वो ही हुआ जो देखा था हमने कि भाई ये बदल सकता है। और देखिए वो कैसा बदला है आज आपके सामने। बड़े बड़े बदलते देखे हैं हमने, बड़े बड़े बदलते देखे।
और नेकों को बद होते भी, वो भी बदलाव देखा है हमने, और वो भी एक लंबी कहानी है। चले आप हजरात गुफ्तगू करें, मैं सुनता हूँ। खान साहब की हाल जनाब? खान साहब कोई नहीं राबता, कोई नहीं WhatsApp ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਹੋ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। चलें बात करें भाई आप लोग। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ। ਔਰ मनशा शुएब मनशा आवाज बड़ी कम है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ नहीं ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗੁਜਰਾਲ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ LGBT ਅਮਜਿਨਸ ਪ੍ਰਸਤੀ और मरज़ियत दा तल्लक इनके नाल कुछ चीज़ें। भाई पता है क्या, देखिए शुएब मनशा किसी भी मौजू के ऊपर बोलने के लिए ठीक ठाक नॉलेज चाहिए होता है मेरे भाई। हर एक नहीं बोल सकता, हर मतलब खिचड़ी ही पक गई है जनाब, ऐसे तो नहीं हो सकता यार। हर फन मौलाई ओ भाई, ये एक मौजू है, इसके ऊपर कसीर मुताला चाहिए, कसीर तुम्हें मालूमात चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सा कानून बना, कहाँ पे क्या हुआ। ये ऐसे तो नहीं, इसके ऊपर क्या बात करूं मैं। ये तो ऐसे ही होगा एक बिल्कुल नहीं। हाँ आप कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ इल्म समझ बूझ है तो मजीद इसकी तहकीकत करें, रिसर्च करें और इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। मैंने अभी अर्ज किया है कि लिकुल्ली फन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते हैं। हाँ अभी जामिया बना रहे हैं ना, जामिया खत्म नबूवत और तकाबले दयानो मज़ाहब का ये जामिया, इसके अंदर हमने तुलबा ऐसे ही बिठाने हैं, मखसूस तुलबा की ड्यूटियां लगा दी हैं, तुम इस पे रिसर्च करनी है, तुमने इस पे करनी है, तुमने इस पे, और उनको वो फिर सारा मटेरियल भी हम पेश करेंगे और एक एक मौजू के ऊपर रिसर्चर बनेंगे। लेकिन उसके लिए भी वक्त है, अभी टाइम लगना है, एकदम वाला नहीं है वो, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मौजूआत इंशाल्लाह सब जेर बहस आएंगे और इनकी तहकीकात होंगी, लेकिन अभी नहीं। हाँ अभी आप हजरात कर सकते हैं तो करें, इसके ऊपर वर्क करें इनफरादी तौर पे। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ और अलहमदुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं चीज़ां क्लियर कीतियां ने और इंशाल्लाह मैं कोशिश करना इस मामले के। हाँ जो भी फिर बात की जाए फिर सबूत और दलील के साथ, दलील अपने पास रखी जाए। जब भी कोई दलील मांगे तो फौरी तौर पे ये लो जी ये दलील, फलां अखबार में ये बात लिखी है, फलां वीडियो के अंदर ये बात हुई है, ये बात है, ये बात है ना। असल में देखिए एक होती है अपनी राय या अपना तबसरा, वो एक अलग चीज होता है। एक होता है कि सबूत के साथ कोई बात करना कि भाई देखो ये जो बात मैं कह रहा हूं फलां जगह पे ये लिखी हुई है, तो वो जो है ना मजबूत बात हो जाती है। सही है। खान साहब नाराज हो गए ना, खान साहब किस होंगे ना? नहीं शाह साहब, खान साहब जाग रहे हैं ते 10:30 होए साढ़े कोल। खान साहब मौजूद हैं? यार भाई शुएब मनशा है, ये मोहब्बत का सपोर्टर कौन है? ये मौजूद उस्ताद मोहतरमाना मौजूद, मेरी आईडी उन्होंने उड़ा दी है कादियानियों ने, वो 2-4 वीडियोस लगाई थी उन्होंने उड़ा के परे कर दी। अच्छा अच्छा, हुण मैनू लगता है किसी लजना की तस्वीर लाई है की है? ओ नहीं जी उस्ताद मोहतरम, वो अगे ही टेंशन चल रही है।
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਸ਼ਿਸਕੁਟ ਤੇ ਚਿਪਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਸੱਟਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲਜਨਾਤ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਸੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਲਾਲ ਗਰਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ। ਕੁਰਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ तुम ही टुर गए हैं? मान भाई काफी देर से ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਊਟ ਤੇ। उस्मान दी फेक आईडी ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ? नहीं नहीं मेरी गल हुई थी शाह साहब, मैं ठीक ब्रॉड ऑन की थी, उस्मान भाई आए थे। ठीक है ठीक है। अच्छा दोस्तों से गुजारिश है, मैं अभी जाऊंगा भाई, तो भाई साहिबान प्यार मोहब्बत करने वाले जो गुजरांवाला के जो दोस्त हैं उन तक पैगाम पहुँचाएं और दाखिले लेके दें यार, जामिया ख़त्म नबूवत के लिए तालबात के भी और तुलबा के भी दाखिले जारी हैं, तो मेहरबानी फरमाएं ये पैगाम दूर तक पहुँचाइए। ठीक है, आपकी कोशिश से प्यार और मोहब्बत से अगर एक बच्चा भी आलम दीन बन गया तो आपके लिए एक अजीम सदका जारिया बन जाना है, एक अजीम सदका जारिया बन जाना है। तो आप कोशिश करिए, मेहरबानी फरमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले करवाएं। अगली बात यह है कि अगर यकमुश्त आप जामिया ख़त्म नबूवत के लिए कुछ नहीं कर सकते खिदमत, तो मंथली कोई ना कुछ अपने ज़िम्मे ले लें भाई सारे, कुछ ना कुछ मंथली। जी मैं मंथली इतने दिया करूँगा। वो ये है कि अभी इस जामिया के भी राउंड बोर्ड ना करके भी अपने कई अखराजात को कम करके भी 2 लाख रुपया महाना की हमें ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, 2 लाख रुपया। और ये एक हमारे लिए तो बहुत खतीर रकम है, लेकिन आप जब सब मिल जाएंगे, कोई 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार बंदे अपने ज़िम्मे ले लें, मंथली लगा लें, तो चलो यार हमारे अखराजात पूरे हो जाएंगे, तो ये जामिया आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। चलेगा तो हर सूरत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो चलेगा तो चलेगा। अब बंद होगा या इस ये तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता इंशाल्लाह, कभी भी नहीं। अल्लाह वो दिन हमें ना दिखाए। लेकिन यहाँ पे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है साहिबान के सारे प्यार मोहब्बत वाले बैठे हैं, अगर 5-5 10-10 हज़ार रुपया भी मंथली अपने जिम्मे ले लें यार, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है यार। आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, आपके तो चंद डॉलर और चंद रियाल और चंद यूरो बनने हैं, लेकिन चलो हमारा निज़ाम चल जाना। तो कोशिश फरमाइए। मुझे ना यकीन जाने शर्म सी आती है किसी बंदे को ज़ाती तौर पे पर्सनल जब कहता हूं ना, तो वो बड़ी शर्म सी आती है, क्योंकि असल में उसमें 2 सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि जनाब ये बंदा हमारी बात शायद ना माने, वो फिर बंदा कच्चा सा पड़ जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि यार हो सकता है इसके पास इतनी हिम्मत ही ना हो, और मैं इसको कहूं तो ये बेचारा वो परेशान ना हो जाए, तो ये वाले मामलात होते हैं। तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, फिर मैं वो जर्नली एक बात कर देता हूँ सबके सामने, भाई जिसने फिर करना हो तो कर ले, नहीं करना तो वो फिर मर्जी है भाई, क्या कर सकते हैं। कोशिश फरमाएं यार। अभी जाती तौर पे मुझे कम अज कम 5-5 हज़ार वाले भी 40 बंदे, हाँ 40 बंदे मैंने तलाश करने ही करने हैं, ताकि ये हमारा मंथली जो है ना ये कोटा पूरा हो। भाई इस निज़ाम को लेके चलना है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 9 दाखिले हो गए हैं लड़कों के, और तकरीबन 5 लड़कियों के दाखिले हो गए हैं कन्फर्म, और ये तकरीबन FA BA और MSc के तुलबा हमारे पास आए हैं। MSc, हाँ एक प्रोफेसर हैं MSc के, वो उन्होंने भी दाखिला लिए।
तो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर मेहनत करेंगे हम, और भी दाखिले अभी तो आएंगे और आएंगे इंशाल्लाह। तो जिसके मुकद्दर में होगा वो पढ़ेगा इंशाल्लाह, तुलबा भी और तालबात भी, आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह काम। ये फितनों का दौर है मेरे भाइयों। ये अभी जो ये ट्रांसजेंडर और वो उनकी बात कर रहे हैं, हम जिन्स परस्ती की मंशा शुएब मंशा, फितने हैं। इन फितनों के तदारुक के लिए और रद्द के ऊपर ये जामिया बनाया गया जी। इंशाल्लाह अल्लाह हामियों नासरो। चलें बात करें जी, मैं बैठा हूँ। शाह साहब बिल्कुल इस तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜਨਗੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਤਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਮਰਜ਼ੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कामयाब करे जी शाह साहब। बेशक भाई, बिल्कुल सही। जी जी डॉक्टर भाई, जी बात करें आप, मैं कह रहा हूँ आमीन आमीन। फिर भाई बिल्कुल सही बात है। ये हम दोस्तों को इस बारे में सोचना चाहिए। इस तरह जैसे रमज़ान का महीना है और अल्लाह ताला अजर भी 70 गुना कर देता है इसमें भी। तो जैसे शाह साहब ने मेंशन किया कि जनरली बात भाई होगी ये है अली खान, ये रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह हुआ। ये वैसे ही एक यकीन मानिए, वल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अभी तो ये बनाने का मेरा इरादा ही नहीं था, ऐसे ही अल्लाह ने ज़हन में डाली कि क्यों ना इसका भी शुरू करो। तो ये इफ्तिताह इसका हो गया रमज़ान के महीने में ही। तो अभी से ही आप लोग अहद करें यार, हमारे साथ चलें, इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत वाले हमारे साथ चलें यार। कि सिर्फ तुसी वैसे सानू शाबाशां देनियां ने, मुफ्ती साहब बड़ा बेहतरीन काम करदे हो, बड़ा करदे हो, इंज करदे हो कर दो। भाई मैं ते कर रहा, तुसी भी ते टुरो ना यार नाल। मामला है ना यार। जी बिल्कुल शाह साहब, ये भी मेरी तरफ से भी और दोस्तों को भी दरख्वास्त है, जितने भी सुनने वाले ब्रॉड के तवस्सुल से भी कुछ ना कुछ जरूर इसमें करे। और शेख भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ये फितने घरों तक अभी तो अली खान, अभी तो ये है कि मंथली मुझे लोग चाहिए जी। कम अज कम 5000, कम अज कम 5000 वाले बंदे अब लेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा, जितने भी मेरे प्यार मोहब्बत वाले हैं सारे ही इसमें शामिल हों भाई। मंथली तो कम से कम लगाओ यार, मेहरबानी करो इंशाल्लाह शाह साहब। ताकि यार अगर तो 2 लाख हो गया तो वो तो इस इदारे में खर्च हो जाएगा। जो इजाफी अगर हो गया तो वो जामिया खत्म नबूवत की अराजी के अंदर शामिल करते रहेंगे या दीगर मामलात में शामिल करते जाएंगे। हैं करें तो सही ना यार आप लोग। अभी तो मुश्किल मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये 2 लाख मंथलियां हमारी इकट्ठी हो जाएं। शाह साहब जरूर इंशाल्लाह इसकी कैंपेन भी चलाते हैं, खुद भी कोशिश करता हूँ मैं हिस्सा लूँ। तो जितनी हो सके इंशाल्लाह हम इस कार्य खैर में जरूर देंगे। आपकी बड़ी कोशिश है, इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह जजाक अजीज, जजाक जजाक। इंशाल्लाह। मेरा ना एक दोस्त है, आजकल वो पता नहीं क्या हो गया उनको, वो उनका कुछ खुद जाती कोई मसले बने हैं। उनका एक ना रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने ना हमारे खत्म नबूवत फोरम के नाम का एक गल्ला, वो जाती गल्ला उनका था, यानी लोगों से नहीं वो पैसे लेते थे, जाती गल्ला। वो कहते थे शाह जी मैं ना ये जब रेस्टोरेंट बनाया तो मैंने नीयत की कि मैं खत्म नबूवत फोरम की खिदमत किया करूंगा, और पता नहीं इतनी परसेंटेज जो है ना वो मैं इस गले में डाला करूंगा डेली की। तो वो भाई वाकई वो ही हुआ, वो परसेंटेज करके ना महाना वो मुझे भेजा करते थे। तो अल्लाह ने इतना उनको माशाल्लाह उनके जान माल में बरकतें दी। एक रेस्टोरेंट, दो, तीन, पता नहीं इस तरह करके काफी उनका ना वो बिखर गया काम। तो ये है कि फिर उससे हमने काम बड़े किए, बड़े बड़े काम किए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ये तो ऐसा ही अगर कोई कर ले कोई दोस्त, हाँ जी, तो वो एक गल्ला हमारा बना के रख दे, उसके अंदर कोई कुछ ना कुछ रुपया दो, 1 यूरो, 2 यूरो, $1, $2, 1 रियाल, 2 रियाल, इस तरह करके डाले, वो बंदा उठा के हमें भेज दे। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, कोई मुश्किल तो नहीं है, जी शाह ये साहब तो बहुत दिल अच्छा को मशवरा समझाने है। वाली बात है ना हाँ, जनाब। बिल्कुल। मुझे दोस्तों से दरख्वास्त है, ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। पहले तो हम ये सोचते रहते हैं कि कोई जो है ना हमारे सामने हो, हमारे आगे एक एक इमाम की शक्ल में वो उसको शुरू करें। अभी तो माशाल्लाह ग्राउंड भी रेडी है, शाह साहब भी रेडी हैं पूरी एनर्जी के साथ। दोस्तों से दरख्वास्त है, और इंशाल्लाह शाह साहब मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस बात पे अमल करूँ कि थोड़ा बहुत रख के ना कोशिश करके इसको इसमें हिस्सा बिल्कुल लिया यार, जाए। ये अगर ये अपने अपने गले ही बना लेना, एक छोटे हमारे सेपरेट गले घर अपने शाह घरों साहब, में ही। शाह साहब मैं इंशाल्लाह ऐलान करना सारे सामने, मैं पहले अपने महल्ले ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੱਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾ अल्लाह ਤਿਆਰ सलामतियां ता फरमाए, अल्लाह सलामतियां ता फरमाए, अल्लाह तुझे सलामतियां ता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी मैं अर्ज कर दूं, या तो ये आपने बात करनी नहीं थी शुएब मनशा, और अगर कर ही दी है तो उसकी फिर वजाहत भी मैं कर दूं। देखें, ये किसी मस्जिद का गला नहीं काटना, किसी मदरसे का, किसी तंजीम का, किसी पीर का, किसी का गला काटना नहीं है भाई। वो भी तो निजाम उन लोगों ने भी तो चलाने हैं ना, वो ऐसे ही चल रहे हैं, आप लोगों की तावन से तो सारे निजाम चल रहे हैं। तो दीन के हजारों मदारस, हजारों इदारे, हजारों तंजीमें, हजारों मामलात, मसाजिद हैं, चल रहे हैं, वो सारे आप लोगों के सही चलते हैं। यहाँ तो नाम नहीं लेना था आपने। तो बहरहाल ये है कि हिकमत अमली, कहते हैं मोमन का गुमशुदा खजाना है, तो वो कोई ऐसा ना स्टेटमेंट दी जाए ओपन मीडिया पर कि जो फिर बाद में ना मसाइल क्रिएट हो। समझ आई कि नहीं? समझ गए होंगे मैंने क्या बात की है। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੰਨੇ ਆ। हाँ ਔਰ हाँ, ਉਹ ठीक हो, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ठीक हो, ਕੋਈ ठीक हो, ਬੈਚ ਨਹੀਂ ठीक। ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ देखे ना, ਬਕਾਇਦਾ वजाहत हो गई है ना, एक बात की वजाहत हो गई। ठीक ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ठीक ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਮਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ जजाक अल्लाह शुएब मनशा, जजाक अल्लाह यार। ये पैगाम शुएब और जो सऊदीया के दोस्त हैं उन तक भी पहुंचाओ यार, हैं इंशाल्लाह शाह जी, इंशाल्लाह यार। इंशाल्लाह यकीन मैं जानो, मैं भी मदीना शरीफ रहा तो हम लोग, आपको पता ही है, खुद कितना खा पी जाते हैं। तो बंदा यार कोई नहीं, अगर मिसाल है 2-4 रियाल भी डेली के डालेंगे तो चलो
कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। हाँ जी, चले ठीक है यार। साहिबान बैठे हैं आप। अली खान, ये खान साहब तक भी पैगाम पहुंचा दीजिएगा, उस्मान तक भी, और नुमान भी नीचे बैठा है, और बड़े प्यारे प्यारे बैठे हैं। सुहेब भी मुझे नजर आया था, वो चला गया है कि बैठा है? शाह साहब चले गए हैं मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, बहरहाल चले ठीक है। अल्लाह हाफिज जनाब, मुझे इजाजत दें यार, हैं मैंने थोड़ा सा काम करना है। जज़ाकल्लाह खैर शाह साहब, जरूर आपका पैगाम इंशाल्लाह जहाँ जिस ब्रॉड में मुमकिन हो सका जरूर पहुंचाएंगे, जी खुद भी कोशिश करें। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, ले जी काशिफ भाई माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। शाह साहब ने कही पहले कोई कहता नहीं था कि इस काम की तरफ आना है, अब अवेलेबल है। शाह साहब ने माशाल्लाह पूरे दिल में तैयार किया कि इंशाल्लाह इस फितने